Hello students, welcome back to my channel Ducklings. Today's video is on the question and answers for class 6 history chapter 3 in the earliest cities. So let's start. I hope you have seen the video of the chapter explanation. If not, the link is in the description box so you can check the explanation of the chapter video from there, and thereafter you can look into this question answer video. So starting with the question answers. The first question is, name the places where archaeologists found Harappa. So we know that this chapter is about the cities which are found by the archaeologists. Around 4700 years ago, the city of Harappa was built, which was found by the archaeologists around 80 years ago. So these were found by the archaeologists in Punjab and Sindh of Pakistan and Punjab, Rajasthan, Gujarat and Haryana in India. Next question. List the objects found by the archaeologists in Harappan cities. Archaeologists have found a set of unique objects in the Harappa cities like red pottery painted in black, stone weights, seals and beads, copper tools and long stone blades, and toys made of terracotta. So these are the things which were found by the archaeologists. Question number 3. Describe the structure of Harappan cities. Answer. Around 80 years ago, archaeologists found the oldest cities in the subcontinent. These were named as Harappan and has the below features. These cities were divided into 2 or more parts. Students, I hope you remember, जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने सिटीज का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था. एक बार दोबारा से मैं आपको रिकैप देती हूँ सिटीज के स्ट्रक्चर का. ये जो सिटीज फाइंड की गई थी हरप्पा में, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. एक पार्ट वेस्ट में था जो कि छोटा था साइज में, बट इट वाज ऑन अ हायर ग्राउंड जिसको सिटाडेल बोलते थे और जहाँ पे इम्पोर्टेंट पीपल जो थे वो रहते थे. सो व्हेन वी सेइंग इम्पोर्टेंट पीपल मीन्स जो रूलर्स होते थे, यानी कि जो जिनका काम था सिटी को प्लान करना और जिनके पास सारे प्रीशियस थिंग्स जो थी वो पोजेशन में रहती थी, उनको हम इम्पोर्टेंट पीपल बोलते थे जो कि सिटाडेल में रहते थे, विच वॉज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, एंड द ईस्टर्न पार्ट वॉज लार्जर बट इट वॉज लोअर एंड देयरफॉर इट वॉज नोन एज द लोअर टाउन. इसके सिवा हमने देखा था कि जो दोनों ही पार्ट्स हैं उनके आसपास वॉल्स बनी हुई थी ब्रिक्स की, और वो ब्रिक्स जो है प्रॉपर्ली बेक्ड ब्रिक्स थी, जिससे प्रूफ होता है कि उस समय ब्रिक बिल्डिंग शुरू हो चुकी थी. और ये वॉल्स बनाने के लिए उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था, जिससे कि उस टाइम के लोगों की आर्किटेक्चर प्लानिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स के बारे में पता चलता है. इसके सिवा उनको एक बिल्डिंग जिसका नाम है ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में वो मिली थी, और कालीबंगान और लोथल की सिटीज जो है वो गुजरात में पाई गई थी, और वहां पे जो है उनको फायर अल्तार्स जो है वो मिले थे. यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिला. द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 or more parts. Part on the west was smaller and higher known as citadel. Eastern side was larger and lower known as the lower town. Strong walls were made around each part by laying baked bricks in interlocking pattern. Archaeologists found the Great Bath in Mohenjo-daro. Fire altars were also found in Kalibangan and Lothal, where sacrifices may have been performed. Correct? Next question is describe the Great Bath. ये बहुत important question है. Archaeologists found a specially constructed building known as the Great Bath in the city of Mohenjo-daro. It was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a natural tar layer. There were steps leading down into from both the sides. There were rooms on all the sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Important people probably used to take a dip in this tank on special occasions. ये जो पूरी चीजें हैं, आपको अगर इनका अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट, तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं. ये वाली वीडियो में उनको मैंने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपको पूरा बताया कि क्या क्वेश्चन रहेगा तो क्या उसका आंसर होगा. ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन आंसर से पहले आप जरूर एक्सप्लेनेशन की वीडियो को देखिए. हाउ वर द हाउसेज एंड ड्रेन्स डिजाइंड इन हरप्पन सिटीज? Archaeologists found the remains of the houses and the drains in the cities and discovered features as below. Houses were either 1 or 2 story high with rooms built around a courtyard, यानी बीच में खाली बड़ा स्पेस था, उसके आसपास उन्होंने रूम्स बनाए हुए थे. Separate bathing areas were there where water was supplied through wells. Drains थे जो वो covered थे, they were laid down in straight lines with gentle slope for water to flow through it. Drains in houses were connected to the drains on streets, and drains were covered with inspection holes to clean at regular intervals. Explain the life in the city.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लाइफ इन द सिटी की सिटी में लोग कैसे रहते थे, किस तरह के लोग रहते थे. सो हरप्पन सिटी वाज अ बिजी प्लेस, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल लिव हियर. तीन कैटेगरी ऑफ पीपल मैंने आपको बताए थे. फर्स्ट वाज रूलर्स, they were the one who were important people who planned the cities and owned most valuable objects like gold and silver, beads, etc. And they sent people to different lands to get the things they wanted. है ना. दूसरे थे scribes, these were the people who knew how to read and write and they also helped making the seals. And third were the craftsperson, these were the men and women who made all kind of things and either in their homes or in the workshops. Moving to question number 7, what were the different type of crafts which developed in the city? Because आपको मैंने अभी बताया 6th क्वेश्चन में कि वहाँ पे थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल कौन थे, क्राफ्ट्स पर्सन. तो ऐसे कौन कौन से क्राफ्ट है जो उस टाइम पे सिटीज में डेवलप हो चुके थे. सो द आंसर इज एज बिलो. आर्कियोलॉजिकल स्टडीज प्रूव द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्राफ्ट्स. बहुत तरह के क्राफ्ट्स हो चुके थे बाय द पीपल लिविंग इन द हरप्पन सिटीज एज बिलो. कौन कौन से देखते हैं. थिंग्स फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इन द हरप्पन सिटीज वर मेड ऑफ स्टोन, शेल्स, मेटल इंक्लूडिंग कॉपर एंड ब्रोंज. जो आर्कियोलॉजिस्ट को चीजें मिली वहां पे क्राफ्ट्स की, वो स्टोन के शेल से या मेटल से, कॉपर और ब्रॉन्ज से, इन सब से बने हुए थे. कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो थे उससे टूल्स और वेपन्स बने थे. ऑर्नामेंट्स और वेसल्स जो थे वो गोल्ड सिल्वर के बने हुए मिले. सील्स जो थे वो रेक्टेंगुलर स्टोन्स विद एनिमल्स कार्व्ड ऑन देम ऐसे मिले. पॉट्स जो हैं वो ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन में बने हुए थे. पीसेज ऑफ क्लोथ जो थे वो मिले थे सिल्वर वास से के कवर से अटैच. मैंने आपको उसमें भी बताया था, इसको आप प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा. दिस इज नॉट वेस्ट, दिस इज सिल्वर वास. VASE, सिल्वर वास. ठीक है. उसके कवर पे, उसके लिड पे, ढक्कन के ऊपर क्लोथ अटैच था, जिससे पता चलता है कि उस समय जो है कॉटन जो मेहरगढ़ में ग्रो होता था उससे कपड़ा बनाना शुरू हो चुका था. और इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमें वहां पे स्पिंडल व्हील्स भी मिले थे जो कि टेराकोटा और फेंस के बने हुए थे, जो कि किस लिए यूज होते हैं, धागा बनाने के लिए, फ्रॉम कॉटन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज फेंसे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन. फेंसे इज एन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल with the help of a gum, sand or powdered quartz was shaped into objects which were then glazed to get a shiny glass type surface. So मैंने आपको समझाया था कि फेंस बेसिकली नेचुरल मेटल नहीं है, एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया मेटल था, जिसको कैसे बनाते थे, सैंड या फिर जो पाउडर्ड क्वार्ट्ज है उसको एक ग्लू के थ्रू शेप में डालते थे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप दे देते थे किसी ग्लू से चिपका के, से उसे इकट्ठा करके और फिर उसको पका देते थे. ग्लेज मतलब उसको सेका जाता था, पकाया जाता था, ताकि उसका जो सरफेस है वो शाइनी ग्लास जैसा स्ट्रक्चर जो है सरफेस जो आपको दिखे, जो जनरली ब्लू या ग्रीन कलर का होता था. और इससे क्या क्या बनता था, बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, वेसल्स, ये सब चीजें इनसे बनाई जाती थी. अब उस टाइम पे स्पेशलिस्ट किनको कहा जाता था, मैंने आपको बताया था कि लोग जो थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो एक ही काम को करने के लिए ट्रेंड थे. जो वो एक ही काम को डेली करते थे तो वो स्पेशलिस्ट बुलाए जाते थे, क्योंकि एक ही तरह का काम करने के लिए उनको ट्रेन किया गया था. तो वो कटिंग स्टोन या फिर पॉलिशिंग बीड्स, इस तरह के काम वो करते थे. और जितने भी आप वहां पे क्राफ्ट देखेंगे जो हरप्पन सिटीज में या हरप्पन सिविलाइजेशन में मिला है, वो सारा इन्हीं स्पेशलिस्ट के द्वारा किया गया काम था. तो स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads. Many of the things that are produced in the Harappan civilization was the work of these specialists. At the time perhaps men and women were may have been specialists. कुछ लोग जो होते थे men और women जो वो specialist होते थे. अब ये सब चीजें बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल. ये आपको मैंने चैप्टर में समझाया था कि जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग जगहों से आता था, कुछ तो नेचुरली मिल जाता था और बाकी का जो है वो, जैसे कॉपर जो था वो राजस्थान और ओमान से आता था. कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था और टिन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था. गोल्ड कर्नाटका से, प्रीशियस स्टोन्स गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आता था. तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द यूज ऑफ द प्लो. Plow was used to dig the earth from, आप ये correction कर लीजिए, this is not plume, this is plow. This is plow, P-L-O-U-H. Plow was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. What were the sources of food for the people in the cities? Source of food उनके पास क्या था? I told you कि उस टाइम कंट्री साइड पे फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे जो कि क्रॉप्स ग्रो करते थे, एनिमल्स को रियर करते थे. सो वही उनके पास एक सोर्स ऑफ फूड था. फार्मर्स जो है अलग तरह की क्रॉप जैसे व्हीट, बार्ली, पल्सेस, राइस, सेसमी, लिनसीड, मस्टर्ड ये ग्रो करते थे. हर्डर्स जो है कैटल, शीप, गोट, बफेलो इन सबको रियर करते थे. इसके सिवा
फ्रूट्स जैसे कि बेर है उनको कट करते थे, फिशिंग करते थे, और एंटीलोप जैसे वाइल्ड एनिमल्स को हंट भी किया जाता था। तो ये सब उस समय सिटी में रहने वाले लोगों के लिए सोर्स ऑफ फूड था। डिस्क्राइब द सिटीज फाउंड इन गुजरात, क्वेश्चन नंबर 13। किस तरह की सिटीज गुजरात में पाई गई थी? आपको बताया था 2 सिटीज थी। 2 इंपॉर्टेंट सिटीज जो है गुजरात में पाई गई थी, धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा लोकेटेड है जो रन ऑफ कच्छ का खादिर बेत है, वहां पे जगह है, वहां पे ये पाई गई थी, जहां पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल जो है पाई गई थी। इसके सिवा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे हमने उन सिटीज को जो देखा था हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी वेस्ट एंड ईस्ट में, लेकिन ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और इसके भी हर पार्ट जो है वो सराउंडेड बाय द स्टोन वॉल्स था, और इन वॉल्स के ऊपर लार्ज वाइट स्टोन का से इनकी वॉल्स पे लेटर्स जो थे वो कार्व थे। जबकि जो सिटी ऑफ लोथाल है वो साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है गुजरात में उसके साइड पीछे पाई गई थी, जो कि गल्फ ऑफ खंबत के पास है। यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले थे, इसलिए यहाँ पे स्टोन से बनने वाली चीजें, शेल्स, मेटल्स से बनने वाले इंपॉर्टेंट ये सेंटर रहा जहाँ पे ये सारी चीजें बनती थी। सील्स और सीलिंग्स जो है यहाँ पे बनाई जाती थी, बिकॉज यहाँ पे स्टोन जो था वो बहुत ही इजिली अवेलेबल था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सील्स एंड सीलिंग्स? को मैंने एक्सप्लेन किया था। बैग्स कंटेनिंग गुड्स टू बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वर क्लोज्ड एंड वेट clay was applied on the knot. Seal was pressed on it as a stamp. The impression of the seal was known as the sealing. इसके सिवा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकती हैं, तो इनको आप प्लीज ध्यान से पढ़ के जाइएगा। कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में 4000 ईयर्स अगो स्टार्ट हो गई थी, जबकि जो हरप्पन सिटीज की बिगनिंग है वो 4700 ईयर्स अगो शुरू हुई थी। और ये सिटीज जो है ये इनका एंड कब होना शुरू हो गया, कब लोगों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया, इन सिटीज को छोड़ना शुरू कर दिया, 3900 ईयर्स अगो, और 2500 ईयर्स अगो फिर नए तरह के सिटीज जो है वो एमर्ज होनी शुरू हो गई। सो ये इस चैप्टर का ये से जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बताए हैं। So hope you like this video and this helps you in your examination time. And if you really like this video, please like and share and subscribe to my channel for getting more such videos and notification as soon as the video is launched. Also, if you have any doubts, you can put that in the comments. I'll answer to your query. Thank you so much. Please take care.